Hello friends, my name is Sivendra Pandey. Today I welcome you in my channel Galaxy Candid Educations. Today we are going to learn about the summary of chapter first, Matter in Our Surrounding. So before starting the summary, I remind you, please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. So friends, here I have an NCERT textbook of class 9 Science. So we are going to study about the summary of chapter first, Matter in Our Surrounding. Due to the annual syllabus, in annual syllabus the whole chapter will come. What has been came in first terms and second terms. The combined portion will come in annual. So let's start our topic. Here I have chapter first, Matter in Our Surrounding. So first question arises in your mind that what is a matter? Matter, anything which occupies space, has mass, recognized by our sense organ is called matter. So from this definition it can be concluded that matter follow three criteria: space, accommodation, recognized by our sense organ, occupied space, has mass. थ्री क्राइटेरिया फॉलो करता है मैटर. और मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, टू प्रॉपर्टीज में डिवाइड किए गए हैं मैटर, जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. हियर आई हैव नोट्स. I will make a short video on the notes of this chapter and post it to my channel. You can go through my channel and watch that short video to understand the notes. So here I have classification of matter. So matter is firstly classified on the basis of their properties in two types. First physical properties, second chemical property. Physical properties has been classified into 5 types, but in this chapter we have to learn about only a physical property, in which the physical properties are classified into 3 types, but mostly it is classified into 5 types. What is that? Solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate. But we have to learn about the 3 types: solid, liquid and gas. So there are more classification. Let's go through that also. So matter is also classified into a chemical properties. So chemical properties are of 2 types: pure substance and impure substance. Pure substance are of 2 types: elements and compound. Elements are of 3 types: metal, non-metal, metalloids. Compounds are of 2 types: organic compound, inorganic compound. Or impure substance, it is also known as mixture, which is also of 2 types: homogeneous and heterogeneous mixtures. Homogeneous is also known as solution, which is also of 2 types: aqueous solution, non-aqueous solution. Or heterogeneous mixture are of 2 types: suspension and colloid. Colloids are also some more types like solids, like salt, solid, aerosol, emulsion, gel, etc. etc. So we have to learn only about the physical properties: solid, liquid, gas. Only these 3 types. So let's go through that. So here our first topic is physical nature of a matter. Matter फिजिकल नेचर में 3 टाइप्स के मिलते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. फॉर एग्जांपल टेबल सॉलिड, वाटर लिक्विड, ऑक्सीजन गैस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फ्रॉम दिस हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, which is also known as, which is came under the physical property of matter. So first, solid state. So what is solid state? Solid state is a state in which the intermolecular force of attraction of a matter is very high and intermolecular space is less, or we can say no intermolecular space. So the intermolecular force of attraction is high. That's why molecule of solid cannot move. So one image came in the screen. एक इमेज स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, वो सॉलिड का होगा. सॉलिड के पार्टिकल्स, वहां पे आप देखिए कोई स्पेस मौजूद नहीं है उनके मॉलिक्यूल्स में, कोई स्पेस मौजूद नहीं है, पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में. सॉलिड एक रिजिड होता है. रिजिड, आप पानी में अगर हाथ डालेंगे तो आपका हाथ पानी में चला जाएगा. गैस में आप हाथ डालेंगे तब भी आपका हाथ चला जाएगा गैस में. पर आप सॉलिड में डालने की कोशिश करेंगे, उल्टा आपको ही चोट लगेगा. गैस के पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं. लिक्विड को अगर आप फेंकेंगे तो लिक्विड भी फ्लो करेगा, पर अब सॉलिड को फेंकेंगे जिस शेप का वो रहेगा वही शेप का
फेंकने के बाद भी रहेगा। इससे हम लोग को कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है सॉलिड की? सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, या हम कह सकते हैं कम है। फिर तीसरा रिजिड है, सॉलिड रिजिड है, स्पेस अपना खुद स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, उसके कुछ मास है। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज निकल जाती हैं। अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से देखेंगे उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में जाइए, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लीजिए और उसको देखिए और उसको आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा, जो स्पंज होता है वो सॉलिड है, तब भी तो उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं ना। जो रबर बैंड होता है वो भी सॉलिड है, तब भी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि उनके बीच में उनके जो होल्स होते हैं, बीच में होल्स होते हैं जहां पे एयर भर रहता है। अगर हम खींचेंगे तो उसमें एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे, फिर जब छोड़ेंगे तो एयर पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, वापस वो अपने शेप में आ जाता है, वो भी एक सॉलिड है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है? उसमें जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वहां उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसी की वजह से वो फ्लो करने लगता है, मतलब बहने लगता है। तो इसका मतलब लिक्विड जो है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। आप किसी भी कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे तो वो जिस शेप का कंटेनर है उसी शेप में लिक्विड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जाइए, ग्लास ले लीजिए, एक शीशे का ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, जिस शेप का ग्लास रहेगा उसी शेप का पानी हो जाएगा। तो ये इससे क्या क्या पता चलता है? लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी भी है, कंप्रेसिबल भी है। हम लोग लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं पर लेस कंप्रेसिबल है, ज्यादा नहीं। अगर हम ज्यादा कंप्रेसिबल, फॉर एग्जांपल अगर आप बैलून में लिक्विड भरे, उसको कंप्रेस तो हो सकता है, और ज्यादा करेंगे तो बैलून फट जाएगा और लिक्विड भी बाहर आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि लिक्विड कुछ कंप्रेसिबल है। अब चलते हैं गैस की ओर पे। गैस के पास कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग का जो एयर है, एयर में कई सारे गैसेस आते हैं, इनफैक्ट नोबल गैसेस भी आते हैं, तो वो फ्लो करते हैं ना। एयर भी फ्लो करता है, उसके साथ गैसेस भी फ्लो करती है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। गैस भी जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। तो यही है हम लोग का ये स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब यहाँ पे हमारा दिया है, इसी एनसीईआरटी बुक में दिया है, एक चार्ट बना है कन्वर्जन। जैसे सॉलिड्स को अगर लिक्विड में बदले तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विड को सॉलिड में बदले उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विड को गैस में बदले उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैस को लिक्विड में बदले उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिड को गैस में बदले डायरेक्टली उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, और गैस को सॉलिड में बदले उस प्रोसेस को भी क्या कहेंगे। अब वो चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे चार्ट दिया है और मेरे पास उसका डिफिनेशंस भी कन्वर्जन। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे चार्ट दिया, पेज नंबर आपका 8 पे चार्ट बना हुआ है। देख लीजिए, सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, तो वहां पे हम लोग का क्या प्रोसेस यूज होगा, मेल्टिंग। द प्रोसेस एट विच द सॉलिड स्टेट चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और दूसरा प्रोसेस क्या है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को गैस में कैसे बदलेंगे, लिक्विड को गैस में कैसे बदलेंगे, वहां पे इवोपोरेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इवोपोरेशन और बॉइलिंग। अब आप लोग के मन में दो डिफरेंस आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, दो डिफरेंस आपको चाहिए होगा कि बॉइलिंग और इवोपोरेशन में
बॉइलिंग और इवोपोरेशन में, या वेपराइजेशन या इवोपोरेशन में क्या अंतर है? वेपराइजेशन वो है जब हम लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट कर दे, मतलब ऐसे पॉइंट तक हीट कर दे कि उसमें बुलबुले आने लगे, और उसके ऊपर जब वो लिक्विड चेंज होने लगता है गैस पे, तो 100 फॉर एग्जांपल पे ले लें हम वाटर को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करें 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वो जाएगा ही नहीं हीट एनर्जी, क्योंकि 100 के बाद वो गैस में बदल जाता है। 100 के बाद वो गैस में बदल जाता है, पर जो हीट हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते हैं वो लेटेंट हीट के फॉर्म में गैस में रहता है। और जो बॉइलिंग के बाद जो हम लोग का जो लिक्विड जो होता है गैस में बदलता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग वेपराइजेशन। और जो बॉइलिंग से पहले बदलता है उसको कहते हैं इवोपोरेशन। इवोपोरेशन गर्मियों में ज्यादा पानी को मिलता है, उसी की वजह से बारिश भी होती है, समुद्र के पानी इवोपोरेट होकर क्लाउड बनाते हैं, क्लाउड से पानी जमीन पे आता है बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। ये है। अब हम चलते हैं वेपराइजेशन। और देखिए इवोपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। Evaporation, it is a surface phenomena which occurs below boiling point. Evaporation का क्या डिफरेंस हो सकता है? It is a surface phenomena which occurs below boiling point. It is a conversion of liquid in gas below boiling point. Vaporization, it is a bulk phenomena in which liquid state change into a gaseous state after boiling point. नेक्स्ट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है। द कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो गैस की जो स्टेट है उसको लिक्विड में बदलेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। अब बात करते हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। For example, let's take ice. If we put it to a freeze, then it will get freezed at 0 degree Celsius. If we take a water, put it into a freezer, then by the less of kinetic energy decrease, by the increase in the gas of the freezers, the kinetic energy of the water decrease, it change into a solid state, means it get freezed into a solid state, which is called ice. So that process is called freezing. Then sublimation, the direct conversion of solid state directly into a gaseous state. Solid state को बिना liquid state में बदले डायरेक्ट गैस स्टेट में अगर हम लोग बदल दे, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे sublimation. एग्जाम्पल के तौर पे नैप्थलीन बॉल। आप लोग के घर पे आप लोग की मम्मी अगर कोई अलमारी है उसमें कपड़ा के साथ एक गोल सफेद कलर का बॉल डालती है जिसको हम लोग कहते हैं नैप्थलीन बॉल। उसी नैप्थलीन बॉल को आप देखेंगे कुछ समय बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और डिपोजिशन, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ, देखिए अभी तो हमने पढ़ा कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैसियस स्टेट। अब जब सॉलिड को गैसेस स्टेट में बदल दिया गया डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो वैसे ही गैसेस स्टेट को सॉलिड स्टेट में भी बदला जा सकता है बिना लिक्विड में डालेंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिपोजिशन। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। और कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो अफेक्ट करते हैं इवोपोरेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो सरफेस फिनोमिना है इवोपोरेशन, उसको कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। गर्मियों के सीजन में कैसे कैसे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर राइज हो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल आप लोग एक कपड़ा ले लीजिए, उसको धो के अगनी पे डाल दीजिए बाहर अपने घर के, तो जब टेम्परेचर, सूरज की रोशनी इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो उसमें हीट एनर्जी मिलेगी, तो जो लिक्विड पार्टिकल्स है कपड़े पे, जो लिक्विड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वो इवोपोरेट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इवोपोरेशन बढ़ेगा। तो ये पहला वो है फैक्टर है। दूसरा सरफेस एरिया। आप छोटे से गिलास में पानी ले लीजिए और आप एक बड़े से किसी बाउल में पानी ले लीजिए और उसको ले जाके बाहर रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो आप देखेंगे
कि सबसे ज्यादा पानी जो इवापोरेट हुआ है वो बॉयल हुआ है और ग्लास से कम। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का सरफेस एरिया है, जो सरफेस का एरिया है बॉल में ज्यादा है और ग्लास में कम है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि सरफेस एरिया से भी इफेक्ट होता है इवापोरेशन पे। दूसरा, विंड स्पीड। अब जो आप क्लॉथ बाहर डाले हैं भिगा के पानी में, तो उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, अगर हम विंड की स्पीड अगर बढ़ जाए तो जो वाटर वेपर है वो विंड के साथ फ्लो हो जाएंगे। जब विंड के साथ फ्लो हो जाएंगे तो कपड़े को सूखने में आसानी होगी। तो इवापोरेशन में विंड स्पीड भी एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। चौथा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नमी रहेगी नहीं हवा में तो इवापोरेशन जल्दी होगा, हीट जल्दी आएगा, जल्दी से इवापोरेट होगा। और जब नमी रहेगी हवा में, फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में देख लीजिए, विंटर सीजन में अगर आप कोई क्लॉथ डालेंगे, कपड़ा डालेंगे बाहर टांग के धूप में, तो वो जल्दी सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि जो नमी होती है हवा में वो ज्यादा होती है। नमी ज्यादा होने की वजह से वो इवापोरेट नहीं करते हैं। पर वहीं अगर आप देख लीजिए समर सीजन में ह्यूमिडिटी कम होती है, इवापोरेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब नमी नहीं रहेगी तो हीट, जो सूरज से रे आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, वो जल्दी से इवापोरेशन में मदद करेगी। यही 4 फैक्टर थे जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। और कुछ फॉर्मूला है इसमें बताए गए हैं। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए देखिए सेल्सियस में बदलने के लिए जो केल्विन का गिवन टेम्परेचर होता है उससे 273 डिग्री माइनस कर दीजिए। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे तो बदल जाएगा। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री करेंगे तो बदल जाएगा। So I hope you understand this summary. If you understand this summary, please subscribe my channel and like this video. Thank you.